हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द राइजेस ऑफ द रेडिकल नेशनलिस्ट, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द राइजेस ऑफ रेडिकल nationalist. The middle policy of the moderate in the Congress that led to the rise of the Passionate and the radical nationalist, and who come to be is called Garam Dal. There is the most important here. The radical nationalist who is come to be called Garam Dal. Thus, the first phase of the nationalist is a moment come to an end with the government reaction against the Congress. On one hand, is split in the Congress in 1907. On the other hand, that is why the period after 1905 till 1918 can be referred to as the era of passionate is a nationalist or Garam Dal. The era of passionate is a nationalist or Garam Dal. Lala Rajpat Rai and Bal Gangadhar Tilak is a Bipin Chandra Pal means Lal Bal Pal. There is the most important here. There are Lal Bal Pals mean Lala Rajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. Very important leader of these radical groups here. When the moderates were in the forefront of the action, they had is a maintained a low profit, but now there is a swings into action. And there is enters the market, the beginning of a new trend and a new phase in India as a struggle from freedom. According to them, the moderate has failed to be defined. Indian as a political goal and the method adopted by their mid and ineffective basis. There is a moderate, the mind is confined to be upper landed class and failed to be a enacted to the Marx support as a basis of the negotiation with the British. Three leader on your screen. There is a most important person. There is a Lal, Pal and Bal. Means Lala Rajpat Rai is the first and the Bal Gangadhar Tilaks and Bipin Chandra Pal. There is the most important leader on this period time here. The Garam Dal realized that the British were out to be exploit Indians and destroy there is the self-sufficiency and drain Indian of its wealth. They felt that the Indians should be now to become a free for foreign rules and the governor himself also. And this group is instead there is a making of petitions of the government and believe in the organizing Marx protest here. And criticizing to the government is the policy and boycotting foreign goods and use of Swadeshi. Swadeshi mean here homemade goods etc. And they did not believe in the depending on the marches of the British, but believe that is a freedom was their right. Bal Gangadhar give a slogan, freedom is our birthright and we must have it. There is a most important slogan here. The asking for the UPSC exams also these questions. Bal Gangadhar Tilak give a slogan, freedom in our birthright and we must have it. There is a most important slogan. In 1916, the two groups were again united with their effort of Mr. Annie Besant. And do you remember reading about there is an earlier lesson and she started working for there is a Home Rules movement in the 1914 and she was convinced that India should be a granted self-government. In 1916, Muslim Leagues and Congress also come to an understanding with each other. As a sign to be Lucknow Pact, and later is a Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose become their eminent figure of their Indian National Congress, who lead to freedom movement of Indian forward. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है टॉपिक गरम दल का उदय। देखिए गरम दल काफ़ी महत्वपूर्ण था स्वतंत्रता संग्राम में। जब अंग्रेजों ने जो है नरम दलों से की बात नहीं बनी तो कहते हैं गरम जोशी के साथ जो है अंग्रेजों का सामना करना पड़ा और इसी गरम जोशी को जो है हम गरम दल के उदय के रूप में देख सकते हैं। देखा जाए तो कांग्रेस में नरमपंथियों का विनम्र नीति ही अतिवाद
एवं उग्र सुधार राष्ट्रवाद आंदोलन का प्रथम दौर एक और कांग्रेस के विरुद्ध सरकार की प्रतिक्रियाओं और दूसरे कांग्रेस में 1907 में आए दरार के साथ ही खत्म हो गया। क्योंकि गरम दल जो थी अपनी काम करवाने में हमेशा जो है हिंसा का सहारा लेती थी, लेकिन नरम दल जो थी बातों पे ही विश्वास रखता था। लेकिन कई दशक तक जो है नरम दल की कोई भी प्रतिक्रिया जो है अंग्रेजों तक कोई असर नहीं किया। तो वो इसलिए कि 1905 से 18 तक की अवधि को जो है अतिवाद उग्र राष्ट्रवाद का या गरम दल का युग भी कहा जा सकता है। यानी देखा जाए तो 1905 से लेकर 1918 यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 में, तब से जो है नरम दल का ही वर्चस्व था। लेकिन जब जो है बंगाल का विभाजन किया गया तब 1905 से लेकर 1918 तक जो है अवधि ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें ही अतिवाद उग्र राष्ट्रवाद का गरम दल का जो है युग हुआ और इसका जो है सूत्रपात हुआ। और इसमें मुख्य तौर पे जो लीडर थे उनको लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। और इनको साधारण शब्दों में लाल बाल पाल भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि लाल बाल पाल कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे और बिपिन चंद्र पाल थे। इस गरम उग्रपंथी दल के महत्वपूर्ण नेता थे और इनको इन्हीं नामों से ही जाना जाता है, यानी लाल बाल पाल। जब नरमपंथी इस कार्य में आगे थे तब उन्होंने निम्न रूप से रेखा को बनाए रखा, किंतु अब भी अधिक्रिया और पूरे जोश के साथ हरकतों में आ गए। इसके प्रवेश में एक नई प्रवृत्ति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चेहरे का जो है चिन्हित किया गया और उनके अनुसार नरमपंथी भारत का राजनीतिक लक्ष्य तय करने में असफल रहे। क्योंकि नरमपंथी बात सच्चाई है कि नरमपंथी जो है भारत की राजनीतिक लक्ष्य तय करने में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सके और उनके द्वारा अपनाया गया तरीका नरम और प्रवाहीन था। इसके अलावा वो उच्च जमींदार वर्ग और सीमित रहे। ब्रिटिश के बातचीत के आधार के रूप में बड़े वर्ग के जो है समर्थन में असफल रहे। तो यहाँ पर नरमपंथी की जब असफलता देखी तो गरम दल जो है अपनी प्रभुता स्थापित करने के अंतर्गत वो आगे आए और इसमें तीन जो है महाभूतियों का नाम महत्वपूर्ण है, लाल बाल पाल। चलिए देखते हैं इनको तस्वीर में कि ये किस प्रकार जो है अपनी स्वतंत्रता संग्राम में जो है गरम जोशी के साथ यानी गरम दल के रूप में जो है भारत पे जो है अंग्रेजों का वर्चस्व खत्म किया। यहाँ पर जो आपके समक्ष तस्वीर दिख रहा है वो है लाल बाल पाल, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है लीडर थे जो गरम दल के थे, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। और कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम में इनकी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। इवन कि कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने अपना जो है स्थान रखा और भारत को जो आज़ादी में दिलाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ भी था। गरम दल का यह विश्वास था कि अंग्रेज भारत का शोषण करते हैं और ये विचार सही भी था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज जो है भारतवासियों का शोषण कर रहे थे, उसकी आत्म प्रचुरता को नष्ट कर रहे थे और भारत का जो है धन ले जा रहे थे भारत से। कहते बहुत कुछ जो है अंग्रेजों ने भारत से लेके चले गए। वो अनुभव करते थे कि अब भारतीयों को खुद सरकार चलानी चाहिए और ये गरमपंथी गुट सरकार के जो है दस्तखत करने के बदले बड़े पैमाने पर जो है विरोध भी करने के लिए अतुल थे। सरकार की नीतियों का आलोचना करने, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने और स्वदेशी गृह निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने आदि में उनका महत्वपूर्ण विश्वास था। और वो स्वतंत्रता के लिए सरकार की दया पर निर्भर नहीं थे कि सरकार हमें दया से जो है कुछ दे देगी। उनका विचार था कि जैसे हो वैसे उनसे हासिल किया जाए और ये विश्वास काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया नारा बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण था और कई बार ये एग्ज़ाम में आ जाता है, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये 1916 में दी गई महत्वपूर्ण नारा था, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। 1916 में दोनों समूह जो है पुण्य एनी बेसेंट के प्रयास का एक हुए। क्या आपको इसके बारे में याद है? जो आप अपने पहले हमने इस पर डिस्कस किया था, चर्चा किया था एनी बेसेंट के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं समाज सुधारक थी। उन्होंने 1914 में होम रूल आंदोलन के लिए काम करना शुरू किया और इसके द्वारा बताया गया भारत के स्वशासन दिया जाना चाहिए, यानी स्वशासन देना काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये उनकी विचारधारा थी। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी वैचारिक तौर पर परंपरा से नज़दीकी आए
और लखनऊ एक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध चेहरे हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। यानी देखा जाए तो महात्मा गांधी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जवाहरलाल नेहरू भी बने, इवन कि सुभाष चंद्र बोस भी बने। लेकिन महात्मा गांधी से थोड़ा सा जो है मनमुटाव होने के कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया।